अब ये जो आपने आवाज़ें सुनी, ये इतनी दफ़ा पायलट को सुनना पड़ती हैं और नीचे कंट्रोल टावर पर एक और बड़ा अजाब होता है। वहाँ पर 15 प्लेन्स इकट्ठे अप्रोच कर रहे हैं, 15 लोगों के स्टेशंस काम कर रहे होते हैं। अब कंट्रोल टावर ने एक जॉब क्रिएट की है और वो जॉब है जो बहुत अच्छा सुन सकता हो, और क्योंकि देर आर सर्टेन पायलट्स, दे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, चाइना, they have got different pronunciations. So the whole idea is, can that person who has to be appointed as a station superintendent, can he hear those sounds? Can he distinguish the different title, different sounds, different voices? So the job is here. Who wants to volunteer for that job? Audiologist. Anyone? सर तशरीफ लाएं सर, आपके जी। ये एक खुद तो कोई आ नहीं रहा था जी। अब हमारे पास ये एक वॉलंटियर है जिन्होंने सर तशरीफ जॉब के लिए अप्लाई किया। अब मैं इसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा जो आपको भी सुनना है। Sir, you have been selected, you have been shortlisted for that job. May I know your name, please? Tasneem Saab. Tafeem. Tafeem Saab, can you spell a few words for me? Can you spell a few words for me? All right. Can you spell the word Calcutta? Wrong. Thank you, sir. Thank you very much. Your interview is finished. Now the question is, how many words did I ask him to spell? One? Two? Okay. Why two? Which are the two words? Somebody else, excuse me. Calcutta and wrong. But he thought what I'm saying, Calcutta, spelling of Calcutta is wrong. So the point is, what went to his mind to judge? There was one spelling to spell, one word to spell, or the two words to spell. That we have to see. Next, sir. How does it happen? Okay. दो words का उनको पूछा गया, वो ये समझे तफीम साहब के मैं उनसे कह रहा हूँ कि रॉन्ग, राइट? अच्छा, पहली बात ये कि आप देखेंगे कि हमारे पास लिसनिंग प्रोसेस कैसे इन्वॉल्व होता है 5 स्टेजेस में, ठीक है? ये आपका ईयर कैनाल से होते हुए टिम्पैनिक मेमोरी से फिर वेस्टिबुलर कॉक्लियर होते हुए ये आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स में चला गया। फिर दूसरे में इवैल्यूएशन शुरू हो गया उसके दिमाग में। He heard my command, he heard my request, he understood my request because he started spelling the word. Then he started evaluating. And what did he evaluate? The spelling of Calcutta is such and such. When I said wrong, he said, I may be wrong. Then he has to remember it. And finally, he responded. So if there is a wrong evaluation, you have wrong response. So the point is, why do we have wrong responses and why do we have wrong evaluation? We have known, we know it, that there are some active listening skills, active listening manners. So the subject of this discussion, few slides I'll be discussing with you, is beyond words, exploring speech disorders and the path to communication wellness. Let's go beyond the words. We always talk about words, language, articulation, but what else we have to do?
See, this is the dorsal lateral temporal lobe. उधर भी इधर भी। एक इसको लेफ्ट से लिंग्विस्टिक प्रोसेस कर रहा है, दूसरा वॉइस प्रोसेस कर रहा है। तो लिंग्विस्टिक प्रोसेस करने में तो समझ आ जाता है, लेकिन वॉइस प्रोसेस में आदमी धोखा खा जाता है, राइट? तो क्या होता है? बियॉन्ड वर्ड्स embark on profound journey into the complex domain of speech and hearing disorders. The exploration transcends the mere mechanics of producing sound and understanding speech. इससे पीछे और जाए. It examines deep into the emotional and social consequences that such disorders can have on one's life, highlighting the essential nature of communication in expressing number one, identity. Number two, fostering connections. Number three, participating fully in society. So these are not the words they are dealing with. He is challenged or she is challenged to understand the emotion, the tone behind that command, behind that request. All right. So communication, we need to know three languages of communication. That is verbal language, body language, and third, paralanguage. Verbal language, okay, we know we have to speak Urdu, English, Punjabi, Hebrew, whatever we want to speak. That is verbal language. And how do I communicate with that language? The body posture, the expression, how I'm tilting towards the listener, how I'm not tilting towards the listener. And number three, the paralanguage. That is language before the language. And that is your tonal language. So do we understand tonal language? Now let's see the communication. Visual, your body language is being observed by the listener. Vocal, the sounds, the tones, the prosody you are making. And number three, verbal. Right? Okay, so we need to have three different sources to locate. Visual, to be in professional presence. Number two, vocal, what tone he or she was telling me. Number three, verbal, what language he or she was using. So we are not concerned with the pragmatics now. We are not concerned with the articulation or speech. We are concerned with the actual vocals. So if you see, body language is composed of 55%. Only 7% are the words in communication. So 93% is vocal and your body language. That is tone and the posture. So tone means how slowly you speak, how fast you speak. Can you understand what the listener is going through? कितनी बात उसके दिल और दिमाग तक पहुंची है? That is communication. Communication is not what you speak or what you express. तो जब हम बात करते हैं hearing aids की, hearing की, तो हमको ये देखना कि जिसको बता रहे हैं आप, जिसको सुना रहे हैं आप, उसको कहां तक समझ आ रही है? राइट? अब क्या है? 38% आपका वोकल है, 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज है और 7% आपका वर्बल लैंग्वेज है। तो पहली बात क्या होगी? बॉडी लैंग्वेज, विच इज विजुअल. पीपल सी योर बॉडी लैंग्वेज. नंबर टू, tone of your voice, that is vocal. And अच्छा क्यों नहीं ऐसा नहीं? The tone is giving you the inner feeling of the speaker or the expressing person. And number three is words used, verbal.
what words you are using. Now, what we need to do is, we exclude the body language, visual. Right? We exclude the words used, verbal. So we are left with tone of voice. That is both. अभी ये थोड़ी देर सुबह बात हो रही थी कि डॉक्टर साहब ऑस्ट्रेलिया खान से आए थे कि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है and he starts listening or she starts listening. कई ऐसे 24 घंटे का बच्चा है जिसकी मेमोरी में उसकी मदर का नर्सिंग पैड होता है, उसके टोन जो सुनती रही है, कोई जनरलाइज रूल नहीं है, फिर भी ऐसा कहते हैं कि ये बच्चा खाला की गोद में जाता है तो चुप, फुप्पी की गोद में जाता है तो होता रहता, दादी की गोद में भी होता रहता, नानी की गोद में चुप हो जाता है। क्या वजह? ये वो आवाजें हैं जिससे मेरी माँ परेशान हो जाती थी जब मैं तो उसमें वो देखते कि नानी की आवाज हमेशा शफकत भरी रही और मेरी माँ खुश पड़ी, और जिस आवाज से मेरी माँ परेशान हो जाती थी मैं भी डिस्ट्रेस में चला जाता था, वो ये आवाज मेरी दादी की आवाज। तो इसका मतलब ये है कि वर्ड से पहले आप टोन पहचानें। आपको वर्ड्स ना भी आते हो, लैंग्वेज ना भी आती हो, आप पहचान लेते हैं कि कोई मांग रहा है, ये कोई हुक्म चला रहा है, ये बेच रहा है, चाहे आप लैंग्वेज जानते हो या ना जानते। अब देखिए एक वेबसाइट है जिस पे रिसर्च कर रहे थे हमारे साइंटिस्ट ऑडियोलॉजिस्ट, वो ये कह रहे थे कि कौन सी ऐसी आवाजें हैं जिसका ताल्लुक किसी एक नेशन, किसी एक कंट्री, किसी एक कम्युनिटी से नहीं है। तो दे सॉर्टेड आउट 24 यूनिवर्सल इमोशंस which are expressed in vocals, from amusement till surprise, negative surprise, positive surprise, or the fear. Amusement, oh! Embarrassment, oh! Disappointment, oh! Fear. So these are the sounds everybody makes in this world, and we should go beyond the country's demarcations. So this I could not play it on the website because it's not internet is not very much available. But one thing is there: sound waves are vibrations that travel through the air or other mediums, reaching our ears and being translated by our brains. But it is not just about hearing, it is about feeling. So normally, if we go beyond hearing, I can hear it, but I could make out the tone he was talking to me, or the frequency he or she was using. हम अपनी हेयरिंग हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? We need to go out and listen to the environmental sounds, rain, and you name it. और ये नहीं करने से हम अपनी हेयरिंग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने काम की बचपन से, वो कितना नया हो सकता है। लेकिन इन्वायरमेंट में जाते हैं बाहर, जो कैंपिंग कर रहे हैं स्काउट्स,
नेवी के लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वो ऐसी ऐसी जगह जाकर जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं अपनी हेयरिंग रेंज को बढ़ाते हैं। दैट इज द हेल्थ ऑफ योर हेयरिंग। वो आपकी सुनने की सलाहियत में एक एक्स्ट्रा है। सर इसको प्ले कीजिए सर। अब जैसे ये आवाज, अब आपकी खिड़की में से आप सुन रहे हैं सर आवाज। The process of hearing a voice and decoding it into meaning involves a complex network of auditory pathways and brain regions. This process converts sound waves into electrical signals. That is the key point. Electrical signals. Transduction. We have got a transducer that changes our environmental sound, a different energy into a different energy, into neural impulses. अभी यहाँ पर एक सवाल था कि सुनाई तो देता है, समझ नहीं आती, सुनाई तो देता है, ध्यान नहीं जाता। कितनी दफा कुरान पढ़ा जा रहा है, ध्यान नहीं जाता। क्या वजह क्या है? ब्रेन रीजन को हमने ट्रेन नहीं किया। कि हमें सुनना भी आता है, सीखना भी आता है कि किसकी आवाज है बड़ी जबरदस्त आवाज, मेरी माँ की आवाज, मेरे अब्बा की आवाज, right? So what happens? You know these 5 senses, we have got 7 senses, but let's do it. Now we are only concerned now with the hearing. So what happens? Eyes, light waves create neural impulse. Nose, chemical reaction and gaseous molecules create neural impulses. In the ear, sound waves create neural impulses that we are concerned about. So what happens? Sound waves to electrical signals. I will just go very quickly. We know that outer ear, middle ear, inner ear. So outer ear is pinna and canal meatus. Middle ear is ossicles, जो आपके hammer और incus चल रहा है, और the cochlea, the inner ear. आवाज यहाँ से गुजर रही है, and that is turning into neural impulses. अब ये जो auditory nerve है, आपके vestibular cochlear nerve, जो cochlea से और vestibule से जा रही है आपके auditory cortex. ब्रेन स्टेम प्रोसेस, जो ब्रेन स्टेम के साथ है वो आपकी कॉक्लियर मीडिया में जाता है, न्यूक्लियस में, और उसके साथ पॉन्स में ट्रेवल करता है, मेडुला में, फिर मिड ब्रेन में पहुंचता है। वो कैसे हो रहा है? मिड ब्रेन जो है वो आपकी फ्रॉम द इंफीरियर कॉलिक्यूलस द सिग्नल ascends to thalamus, medial geniculate बॉडी, वहां तक भी पहुंच रहा है, असेंड कर रहा है। उसके बाद ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जो टेम्पोरल लोब है हमारा, वहां पर ये जो हमारा जो था मीडियल जेनिकुलेट बॉडी सेंड्स द सिग्नल टू प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, और यहां से फिर आगे चलता है हेयर, बेसिक एस्पेक्ट ऑफ साउंड सच एज पिच, वॉल्यूम are processed. यहाँ तक आपको अब very quickly we have just gone through.
उसके बाद हायर लेवल प्रोसेसिंग होगी, वही आपके दिमाग में बिलो कहते हैं वेनिक्स एरिया, ब्रोकास एरिया। वेनिक्स एरिया क्या कर रही है? Posterior part of the temporal lobe. Vedic area is crucial for processing and understanding spoken language. Broca's area for speech production and more complex language processing. Vedic area interacts with Broca's area and other brain regions involved in language, memory, cognitive processing to interpret the meaning of speech and formulate appropriate response. If you can go back to the example what we had just now, we had a short interview. Now, can you just recall, do that reverse engineering, what has happened to Tafim Saab? He was listening very carefully, and he remembered what I asked, can you spell the words? But when he spelled the word, I said wrong, so that whole scenario changes into different response. ये कई दफा होता है हमारी जिंदगी में। कुछ हम सुन रहे हैं, कुछ और मतलब कहते हैं। कहते हैं कि the trouble is thick, faults are thin. जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसकी छोटी मोटी बातें हम नजरअंदाज करते हैं। अगर आपको मोहब्बत नहीं है, छोटी छोटी बातें पकड़। This is we have to learn to avoid interpretation. By learning, by decoding the tone, by the modulation of your voice, feedback integration, and then what happens? Transduction from environment, sound waves into neural impulses, transduction, conduction, transmission, and it goes to प्रोसेस और बीच में एक मॉड्यूलेशन भी हो रहा है। अगर ये बात पे पूरा करेक्ट है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर चीज समझ आ रही है। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू लिसन। और माइंड को ट्रेन कैसे करते हैं आप? यू डू इट एवरी डे, यू डू इट एवरी मॉर्निंग, यू डू इट एवरी आफ्टरनून। उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि इसको किसी न किसी तरह एड्रेस करें तो क्या कर सकते हैं? टोटल इम्पेयरमेंट often discussed in the context of communication disorders. It's not always the words. Can significantly impact personality development. अगर personality develop हम करना चाहते हैं तो फिर हमको विजुअली भी देखना पड़ेगा, बॉडी में वर्बली भी सुनना पड़ेगा और वोकली भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये किस लहजे में ये मुझसे बात कर सकते हैं या मैं इस लहजे में मुझसे बात कर सकता हूँ। Then the emotional intelligence come into play. And what is that? Social interaction difficulty. 4 ऐसी चीजें हैं जो टोनल इम्पेयरमेंट की वजह से हो सकती है। Social interaction difficulties, limited expression. You have not learned many expressions to express. Social withdrawal. Since you don't understand, you don't speak, you don't listen. So you go into isolation. यहाँ देखने की जरूरत है कि बच्चा आइसोलेशन में जा रहा है, रात को कैसे सो जाता है, फिर सुबह कहता है स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या बच्चे के साथ जैसे ये बच्चा बस ऐसे ही बोल रहा होगा, बहाने कर रहा होगा, नहीं तो बहाने के पीछे कोई रीजन है। वो पेरेंट्स को चाहिए कि वो पता करें उसकी काउंसलिंग। उसको आपने अगर मोबाइल फोन दे दिया है तो मोबाइल फोन ले लें, तो उसके बाद क्या देंगे? मोबाइल फोन ले लिया तो क्या दिया आपने उसको? बोलिए, प्ले विद दैट चाइल्ड। कोई स्क्रैप बुक बनाए उसके साथ, कोई ड्रामा करे उसके साथ, कुरान की आयतों के मतलब समझाए उसको, अगर आप माँ बातें उसकी समझ जाएगी। तो अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे कि हम आपके पास वक्त है, बाप के पास। एज ए स्पीच पैथोलॉजिस्ट में कई दफा ऐसे केसेस देखता हूँ कि नाना इज ए आई स्पेशलिस्ट, ही ब्रॉट हिज ग्रैंडडॉटर, ये उर्दू नहीं बोलती, ये उर्दू में कम्युनिकेट ही नहीं कर सकती। एक और
और पेरेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने कहा मेरी बेटी कोरियन बोलती है, ना उर्दू बोलती है ना किसी को। कहाँ से सीखी? कोरियन कार्टून। उस वक्त आप क्या कर रहे थे जब दिन रात कोरियन कार्टून देख रहे थे? अब कहाँ पर होता है? हो सकता है उस औरत बीमार हो, उसकी इतनी तबीयत खराब हो कि वो अपने बच्ची को लुक आफ्टर ही नहीं कर सकते, तो हो जाता है। पप्पी क्या करता है? अगर शादी होती है, वैसे शादी के बाद लेकिन अगर वो दादी क्या करे? आपके पास कोई ऐसा क्लब था कम्युनिटी का, स्कूल में, मोहल्ले में, जहाँ बच्चे सीख सकेंगे दूसरे से? तो नहीं बना। हम तो टेक्स्ट बुक टर्म्स में बातें करते हैं और टेक्स्ट बुक टर्म्स में हुक्म सादर कर दें। क्या हम उस पर काम कर रहे हैं? इस वर्ल्ड हियरिंग डे में कम से कम हमको तजवीज़ वफा तो करनी पड़ेगी कि मैं पेरेंट हूँ, मेरे बच्चे को क्या कराना चाहिए, मेरा बच्चा क्या सीख रहा है, मेरा बच्चा उर्दू, सिंधी, पश्तो, अंग्रेजी सीख रहा है या नहीं सीख रहा। और कोई बच्ची थी, उससे मैंने पूछा कि आप कोरियन बोलने लगी, मैंने स्पीकिंग कोरियन, और वो थोड़ी पूरी पूछ के अंग्रेजी मुझसे कह रही है कि yes I speak Korean। तो I said why didn't you learn Urdu? She said why don't you learn Korean? उसमें आप क्यों नहीं कोरियन सीख लेते हैं, उससे बात है ना? तो ये लम्हा फिक्र वर्ल्ड हियरिंग डे पर जब हम बात करते हैं कि एक्चुअली हियरिंग के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसे मतलब सुनाने की जरूरत है। ओके, इम्पैक्ट ऑन सेल्फ स्टीम, इमोशंस नहीं समझता है। जैसे अभी सर बता रहे थे कि लो फ्रीक्वेंसी में बात हो रही है, वो समझ तो रहे आप, वो बोलते कुछ नहीं, और हाई फ्रीक्वेंसी जो बोलती है इसको नहीं सुनता, और ऐसी जो लो फ्रीक्वेंसी नहीं सुनता, इनको नहीं पता क्या है। लेकिन आप हंसने लगे, आप मुस्कुराने लगे, तो अंदाजा कीजिए जो हमारा डेफ कल्चर है उसमें मुस्कुराना बगैर मेरे कंसेंट के या मेरे शामिल किए कितना बड़ा जुर्म। मैं तो बहुत पुराना हो गया बात हो गया, मेरे बेटी दमाद और सब हंसने में किस बात का है? अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके अब्बा, आपके दादा आइसोलेशन में नहीं चले गए, फिर जैसे सर ने कॉल किया था, एक इंसान को बचाने के लिए आपको इंसानियत होता है, तो क्या आप दादा का इंतकाल वो तभी बचाएंगे आप? उनको जिंदगी गुजारने के लिए और मौका तो दीजिए। सोलिंग डिसऑर्डर की वजह से वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, बच्चे स्क्रीन टाइम बढ़ा के वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, उनको मजा स्क्रीन टाइम में आता है। ये हमको सीखना, और एजुकेशनल और प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेस। तीसरी बात ये जो मुतासर होती है, लर्निंग चैलेंजेस, करियर लिमिटेशन। आपको बहुत सारी बातें सुनाई नहीं देती, तो आप कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। आप जैसे स्पीच डिसऑर्डर और भी उसमें भी करियर लिमिटेशन आ जाती है। हमारे यहाँ कोटा है 2.5 से 5% कर दिया है, फ्रांस में कोई कोटा नहीं होता रिसर्च। आप कहेंगे बड़े अच्छी लोग हैं, इनके पास कोटे नहीं होते। कहते कोटे की क्या जरूरत, ये इश्तिहार है, इस पर आप बुरा होकर बता दें, क्योंकि हर बिल्डिंग डिसेबल्ड फ्रेंडली बिल्डिंग, कोई भी आप जॉब आ रहा अगर आप व्हील चेयर चले 10 मिनट। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट और ब्रेक इफेक्ट ये है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड पर्सनालिटी रिस्ट्रिक्शन। क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो रहा है, बच्चा परेशान है, किस वजह से परेशान है? ये एक तो आइसोलेशन, दूसरी ये कि आपने ख्याल नहीं किया उसको पढ़ाने में लगे। अच्छा ये लफ्ज़ ये आता है कि नहीं आता है, बोलेगा का मेरा बच्चा, आपका बच्चा सुन रहा है, आपने कभी सोचा कि क्या क्या सुन रहा है? क्या वो टोनल स्किल्स में आ गया है? हम सिर्फ ये समझ रहे कि वर्ड क्यों नहीं सुनाई देता है, व्हाई डज ही स्पीक,
he listens, he can feel, उस फीलिंग को एक्सप्लोर करना। ये भी आप अकील साहब ने बताया था कि पोएटर लाउडर क्या है। पोएटर लाउडर जरा आपकी बात को निशान है, आप यहाँ से सेलिब्रेट करा सकते हैं किसी। और फिर डॉक्टर आतिफ की आवाज़ सुनो, लो पिच, कॉन्फिडेंट, अथॉरिटेटिव। आप देखेंगे कि जितना आहिस्ता बोलते हैं, that shows your command over situation. आपको चीखने की जरूरत नहीं, आपको बार-बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ बोलना है। आपने बात सुनी कभी कि पहले माँ बाप अपनी बेटियों को मशवरा देते थे, किसी गहरी मोटी आवाज वाले से पूछती ना, ये तुम पढ़ा रहे हो, जितनी लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, they are selective sounds, they are authoritative sounds. लोग बात मानते हैं उसको। किसी को भी आप देखेंगे कि चीख पुकारता हो, भाषाओं के ड्रामे होते हैं, इसी भाषा को चीखता हो नहीं निकालता है। ओके, गुड। अच्छा, अब स्पीच डिसऑर्डर कहाँ से शुरू? In the context of speech language disorders, tonal impairment might refer to difficulty in using or understanding tone or pitch. Variations in speech rather than hearing loss. Hearing loss. This could be part of the broader speech disorder, but is not typically described in decibel या hertz में आता नहीं है। बहुत सारी चीजें हम क्वांटिटेटिवली देखना चाहते हैं कि डेसिबल पे आ जाए, फ्रीक्वेंसी पे आ जाए, वगैरह वगैरह। We need to focus on quality of expression. And that comes with the expertise in tonal skills, listening to tones, understanding the tones. Speech disorders including stuttering, dysphagia, dysarthria, present significant obstacles in the seamless exchange of ideas. अब मैं एक दफा ये कर रहा था कि मेरी क्लास में ग्रुप में 2-3 ऐसे लोग थे जो स्टटर, तो मेरे ग्रुप में आते हैं। मैं उनसे पूछा आप दोनों मेरे ग्रुप में क्यों आते हैं? उन्होंने कहा सर आप इस बात पे मुश्किल नहीं है कि बात में समझ गए, आप मुझे पूरा मौका देते हैं बोलने। तो फिर हम अपने लेक्चरर से भी बात करते थे, सर आप ये मत बोला, हाँ मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया, मैं जवाब नहीं सर, उसको पूरा मौका नहीं बोलना। आप उसकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टॉर्ट कर रहे हैं बिकॉज ही स्टक है, आपको पसंद नहीं है सर। आप ही एक्सप्रेशन जो है, लिसनिंग जो स्किल्स हैं वो मुतासिर है। नो, यू हैव टू टॉलरेट दैट साउंड। लिसनिंग को टॉलरेट करना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि उसका तफरीह लेना मजाक आना शुरू हो, राइट? The auditory challenges can distort the reception of verbal cues such as tone, pitch, and rhythm, critical for interpreting emotions, intentions, and shaded meanings beyond words. अच्छा, मैं आपको पढ़ रही ना, थैंक यू सर, थैंक यू। उससे पहले तुम्हारा मजाक हो रहा, तो नहीं समझे इसे? अच्छा, नहीं पढ़ा। क्या बात है, हमको प्रोफेशनल प्रेजेंस के लिए बहुत सारे टोन्स सीखने हैं। What we need to do, we need to speak, we need to limit, we need to read. और जब हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, आप रीडिंग कर पाइए। मैं अतुल से मिला अमेरिका में, वो रीडिंग उसने मास्टर्स किया इंग्लिश रीडिंग। मास्टर्स किया हुआ तुमने रीडिंग कैसे रीड करना है? और रीडिंग में क्या है? टोन, हाउ डिड यू एक्सप्रेस द नरेशन and how did you express the dialogue of a woman when she was in trouble or magician? आपने ये भी देखा होगा कि जो अमेज़न की दुकानें या किताबें मिलती हैं, वहाँ पर एक लड़की कहानी सुनाती है।
और मैं बहुत अक्सर देखता था, वहाँ पर एक बार भी आदमी किताब लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए, कॉफ़ी पीजिए, चीज़ के पहले किताब आते रहते हैं, सैकड़ों लोग पढ़ रहे थे किताब। तो वहाँ पर ये लड़की सुनाती थी, तो मैं एक दफ़ा सोचा इससे मैं बात करना चाहता। मैंने उसको कहा कि तुम इस बोर्ड में बिठा कर, मेरे ख्याल 1.5 साल का बच्चा है ये, तो किताब खोल के तुम पढ़ रही थी, तुम क्या समझ रहा होता है? कहती नहीं, मैं तो हिंदी रख के पढ़ती हूँ, वो लेटर की रिकग्निशन सीख रहा है, वो उसकी टोन सीख रहा है, मैं कैसे बोलूँ। एक रेडियो प्रोग्राम होता था, और बच्चों कहानी सुनते, इतना अच्छा डायरेक्ट करती है। आजकल के बच्चे नैरेट नहीं कर सकते, दे रीड विदाउट इमोशंस, क्योंकि हमने उनको नॉवल पढ़ने के नहीं बताया, उनको ड्रामा करने के नहीं बताया, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाई। अच्छा, अब एड्रेसिंग टोटल इम्पेयरमेंट, दिस इज माय लास्ट segment of the presentation. Speech and language therapy. Professional therapy can help individuals improve their tonal expression, making it easier for them to convey emotions and intentions. आपको समझ में आ रही होगा, नहीं आपको समझ आ रही, इसको समझा, ये सारी intentions हैं जो इसको समझ आना चाहिए। Psychological support. Counseling or therapy can address the emotional and psychological impacts, helping individuals build self-esteem and develop coping strategies. ताकि वो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी हो जिससे घबराए, इंटरव्यू में फेल ना हो, कॉन्फिडेंटली बात कर सकते। कब होगा ऐसा? मेरा बच्चा शर्माता था, आप कुछ कर सकते हैं। शर्माना ये कुछ 2 दिन में नहीं हुआ है, ये पूरे 7 साल की कहानी है जो आपने स्टार्ट की। एक बच्चा है, बच्चा क्या है, अडल्ट, वो आता है मेरे बच्चे स्टार्ट काफी सुधर गया, उसके दोस्त, उसके मामू, उसके अब्बा दादू में रहते हैं, वो तक उसको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी माँ अप्रिशिएट नहीं करती। मैं कहते हैं सही नहीं, अभी तुम अभी भी हालात मत कीजिए ऐसे, आप उसको एनकरेज कीजिए। और वो एनकरेज कैसे? तुम अच्छा बोलने लगे, तुम बहुत अच्छा बोल रहे, डिफरेंस ऑफ टोन, क्या और अच्छे नंबर नहीं ला सकते थे? तुम इससे अच्छे नंबर ला सकते। Technology and tools. Various communication aids and technologies can assist improving communication effectiveness, thereby reducing some of the social and educational barrier. So, माफ पढ़ना सीखा, अगर आपको बुरा लगता है कि गाना सीखा, आप भी पढ़ो, उसको आसान देना सीखा। हमारे को मौसम आसान देना नहीं सीखा, और उससे क्या होता है, जिस टोन में वो आसान दे रहे होते हैं, बाद दफा इंस्पायर ही नहीं करता। बहुत दफा जी, तो टोन कैसे सीखेंगे? In conclusion, total impairment can significantly affect personality development by impacting social interactions, self-esteem, educational and career opportunities, and emotional well-being. Emotional well-being होने से झगड़े बहुत कम, इमोशनल वेलबींग होने से गलत फहमियां कम। और इमोशनल वेलबींग कैसे आता है? बिकॉज यू यूज ब्यूटीफुल टोन्स, फ्रेंडली टोन्स, राइट? Addressing these challenges through comprehensive support can mitigate some of the adverse effects and promote more positive personality development. So we need to consider visual language, how you decode the language of body, how you decode the language of facial expressions, the shoulders, the standing posture, and the language, what he is using. We can go to that idea of pragmatism, how he is using the language. मेरे नाना कहते थे बाहर कौन आया, मैं कहता था आपका नाम क्या है? मेरे नाना कहते थे ये पूछते हैं आपका शिवरानी क्या है।
तो प्रेगनेटिज्म हम सीखते थे, अब हम सीखते नहीं, क्योंकि अब सीखने के लिए नाना नानी दादा दादी नहीं है। अब हजारों ऐसी वेबसाइट्स हैं जिससे आप पता नहीं क्या कर सकते। और जब से स्मार्टफोन बेहुदा लोगों के हाथ में है, बहुत दवा है हमारे पास। राइट जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो? I must say what a wonderful talk you have. सिर्फ ये कि उसमें आपने टोन की अहमियत को उजागर किया, और टोन से भी मुनासिब बॉडी लैंग्वेज आपका टोन में बात की तो इतना सो करेक्ट। एक शेर मुझे उस पर याद आ रहा था सुन कि वो याद ले जाता है पप्पी की बात और दादी की बात और उसका जो लहजा था मैं बेबी मॉम कि वो एक बात जो बहुत तल्ख कही थी उसने, वो एक बात जो बहुत तल्ख कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा। दूसरी बात जो आपने कही कि ये जो था जो टोन सुनाते हैं वो जो थी वो पहले जमाने में बहुत सारी दास्तान गो होते थे, बाकायदा उनका प्रोफेशन होता था सराय में और दूसरी जगह पर जहाँ मुसाफिर आके बैठते थे तो मीडिया चैनल तो ये पुरानी कहानियाँ दास्तान को वो सुनाते थे। अभी भी अगर कोई हीर सैफुल गया है और उस कश्ती में बैठा है वहाँ पे भी दोहारे को मिलता है और वो पूरी सैफुल की दास्तान जो है उस दौरान अभी भी सो मेस्मराइजिंग कि आप उस दौर में भी वो जिनों और परियों की दास्तान सुनकर आप जो है वो उसको एडमायर कर रहे होते हैं और आप खामोशी सुनते रहते हैं और फिर इसकी नजरिया मिलते हैं। इट्स अ वंडरफुल टॉक। दास्तान बुक में जैसे उन्होंने बताया आजकल के मॉडर्न जमाने में भी हमारे बहुत अच्छे दास्तान बुक गुजरे हैं, अली का इंतकाल हुआ है ज़िया-उल-दीन साहब, बहुत अच्छे। दूसरी बात मैं आपको ऐड करना चाहूँगा जैसा कि आप बता रहे थे कि बच्चा माँ की गोद में आके जो खुश होता है अपनी नाना बच्चा चाहता है कि नहीं होता, उसमें स्पीच का भी एक असर है, लेकिन एक चीज़ जो नेचुरल है साइंटिफिक ग्राउंड है उसके कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो माँ की खुशबू जो होती है उसकी ऑल्फैक्टरी मेमोरी जिसको कहते हैं वो ही इज बॉर्न विद दैट। जैसे बच्चा रोता है माँ की गोद में आता है तो ऑल्फैक्टरी मेमोरी उसको मैच करती है, बच्चा खामोश होता है। जो पहले 24 घंटे पहले रख देते थे बच्चे को दूसरे डे, अब माँ की गोद में देते हैं कि वो उसके जो खुशबू है वो बच्चा पहचानता है, क्योंकि 24 घंटे के बच्चा में नर्स किया आपने तो दूध की खुशबू के नर्सिंग पैड की तरफ ऐसे घूमता है 24 घंटे के। थैंक यू वेरी मच। दास्तान को ही सुनाते थे जैसा कि आपने कहा साहब की एडप्ट करूँगा। दास्तान को जो थे टेलर की कहानियाँ जो थी वो क्या है, वो ये दास्तान को सुनाते थे मुख्तलिफ टोन्स के अंदर और मुख्तलिफ सिनारियोज को इस तरह से आवाज़ में डेवलप करते थे कि यू फील लाइक टू बी देयर एट द मोमेंट। वास्तव का अनेक लहरा हुआ है जैसा आपने तर्जुमा किया 1001 नाइट्स कोई नहीं सकती, इसका तर्जुमा है 1000 नाइट्स एंड 1 नाइट। तो दास्तान गोई में जो वर्ड्स हैं वो भी बड़े अहमियत रखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much, sir.